Ladies and gentlemen, it takes great courage to stand up to goons, to extremists, to elements who are out to threaten you and somewhere subjugate you or put you under pressure to succumb to their will. It takes a lot of courage. But it also takes a lot of conviction to stand up to those who are wrong and stand up for your country. Joining me now is a couple who have braved these extremists, and they have a very unique name for them, and I'm going to ask them only to say what they call them. But they've stood up to them. And more than about 8 to 9 months of intimidation, ladies and gentlemen, if not more. Harman ji, Khushi ji, namaste. Jai Hind, and thank you very, very much for coming. And Ram Ram ji. And you've come here on a very short visit, but you've taken the time to come and have the chat with us. Thank you very, very much. Thanks for calling. Let me first ask you, what has happened and since when? This January 23, my daughter saw some videos online that some Sikhs are vandalizing Indian flag, abusing people, and doing very silly stuff. And she asked me, are they Sikhs? Because she never saw any Sikhs stooping to this low level. And she asked me, what's Khalistan they're asking for? तो तब तक इसके बारे में कभी बातचीत नहीं हुई थी? No. Even my wife is from Punjab. She never knew what is Khalistan. She came to know when I told them this January what is Khalistan. She asked me a question, and because I do some videos, funny videos on social medias, so I told my daughter, okay, no, forget the funny videos, let's do something serious and post something for the community. I don't know it was my mistake or what, but she stopped me. But I posted a video saying to all those Khotistanis, I call them Khotistanis, that's a separate stories. I told... So from Khota, from the word Khota, Khota Khotistanis. I will tell you why later on. I tell my, on the video post, that these people, they left India a long time back. This movement was dried down because that was forced by some motive for their own profit. And many innocent people, Hindus and Sikhs, were died at that time for around 10-15 years. Every day, lot of killings, innocent. And these people are starting those tactics back again. This is what you explained to your daughter. ये आपने अपनी बेटी को समझाया? ये समझाया कि वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं कि हमको ये खालिस्तान चाहिए. लेकिन मैंने कहा उसको, जिसको खालिस्तान चाहिए, खोतिस्तान चाहिए, आप लोग भारत आके अपना हक मांगो अगर आपको हक लगता है. क्योंकि आप यहाँ सुकून से बैठे हैं, खालिस्तान मांग रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे इनोसेंट सिख है, जिसका खोतिस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, वो बेचारा फिर मारा जाएगा जैसे पहले मारा गया था. आपको चाहिए, आप मांगो, आप मरो. मेरे जैसा कोई मासूम इनोसेंट सिख क्यों मारा जाए? ये वीडियो मैंने डाल दिया मजे मजे में. अगले दिन तक 3 million views. I start getting death threats. Immediately 3 million view होते ही मुझे बेबी पागल हो गया. वो आई एम सेलिब्रिटी. और नोट्स आ रहे, टक 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 टक, विल किल यू, टेक ऑफ द वीडियो, गद्दार है तू, यू आर एजेंट ऑफ इंडिया. अ लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ इट, विल डू दिस, टेक इट आउट. तो मैंने बेटी ने भी बोर्ड पढ़ रही थी, बेटी इज एक्टिव. पापा बोलती क्या? मैंने कहा दैट्स व्हाई आई वांट टू शो कि दीज आर द क्रिमिनल्स हु आर डूइंग सो. नॉट अ कॉमन ट्रू सिख विल नेवर डू दिस एंड थ्रेट अ फैमिली. सिख का काम किया है, जो सच्चा सिख का काम है लोगों की मदद करना. हमारे गुरुओं ने शहीदी दी, अपने लिए नहीं दी, उन्होंने शहीदी दी होरों के लिए जिन पे जुल्म हो रहे थे, जो कमज़ोर थे, और उन्होंने ताकतवर के साथ लड़ाई की. कभी मेरे गुरु ने बदला नहीं लिया. मेरे गुरु के 4 शहजादे शहीद हुए, मेरे गुरु ने के बदला लेने गए, लड़ने गए, नहीं लिया बदला. आप कौन होती हो कि हम बदला लेंगे 84 के दंगों का? 84 के दंगे जो हुए, उनके पैसे इकट्ठे करते हो आप. आज तक भेजिए आपने विदा कॉलोनी में पैसे? नहीं भेजे.
मैं दिल्ली से रहा हूँ, दिल्ली देखा मैंने। 84 के दंगे हुए, हमको मारने आए थे लोग, हजूम आया था मारने के लिए। ये हमें किसने बचाया? हिंदुओं ने। जी। हिंदू सेव्ड अस फ्रॉम द मॉब। वो मॉब वो था जिसका कोई धर्म नहीं था, ईमान नहीं था। कैसे कह सकते हैं कि हिंदू ने मारा सिखों को तो हम उनका बदला लेंगे? हमारी सिक्खी में तो बदला है नहीं। शेर के ऊपर 10 कुत्ते अटैक करते हैं, वो आप शेर जाता है बाद में ढूंढने के लिए किस कुत्ते मेरे पे अटैक किया? नहीं ना। तो सिख वो कौम है, वो शेर कौम है, कभी वो बदला नहीं लेती है। तो आप लोग सिख नहीं हो, आप लोग सिखों को बदनाम कर रहे हो। अच्छा हो मैंने वीडियो डाली कि लोगों को मालूम चले कि सिख में, सच्चे सिख में और जो ये क्रिमिनल्स में क्या फ़र्क है। आप लोग पगड़ियाँ सर में फंसा के खुद को सिख कह रहे हो। उसके तुरंत बाद मैंने 1-2 वीडियो और डाली, हिट हो गई वो भी। और इनका फिर मेरे फ़ोन आना शुरू हो गए, वी नो वेयर यू वर्क, हम तो को मारने आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद 5 लोगों ने हमला किया, रेस्टोरेंट पे आए, घुस गए, खालिस्तान के मनारे लगाए, वीडियो कैमरा साथ लेके आए कि माफ़ी मांग, माफ़ी मांग, मरना तो जान से मार देंगे, तेरे घर का एड्रेस ये, हम कल आ रहे हैं, माफ़ी मांग अभी। और इंडिया का फ्लैग जला, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल, मोदी मुर्दाबाद बोल। मैंने कहा ये किस लिए? कोई खालिस्तान के लिए। मैं कहा खालिस्तान मांग रहे हो, गुंडा राज मांग रहे हो? मेरी बेटी वहीं थी, 18 साल की बेटी मासूमा खड़ी देख रही, मगर निडर खड़ी रही। मेरी बीवी वहाँ थी, साथ में 3 वो स्टाफ थी, लड़कियाँ थी, खड़ी रही। वो 5 ने गुंडागर्दी की, मेरे जो लोग खाना खा रहे थे रेस्टोरेंट पे उनको उठा के बाहर फेंका सबको कि यहाँ खाना नहीं खाना। मैंने कहा ये खालसा राज नहीं हो सकता, ये गुंडा राज है जो आप मांग रहे हो। उसके बाद बड़ा कुछ हुआ, पुलिस की आई, पुलिस के कहने में मैंने वीडियोस वापस उतार ली। मगर वीडियोस वापस उतारने के बावजूद भी उनकी ये थ्रेट्स नहीं कम तो हुए। पुलिस ने आपसे कहा कि आप अपनी वीडियो उतारो। हाँ जी। तो इनकी वीडियो हट गई, जी। पर ये लोग जो बोलते हैं इनकी वीडियोस चल रही हैं, जी, वो ऐसा क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका नहीं है? नहीं। तो फिर आप ने कैसे रिएक्ट किया जब ये सब हुआ? ये सब जनवरी की बात है, जनवरी जी, फरवरी? जनवरी ये की फैब बात। की बात। हाँ, नहीं, फैब की फैब बात। की बात है। हाँ, फिर फैब है। तो हमने बोला कि हमने तो कुछ गलत नहीं बोला, दिस इज अ रियलिटी व्हाट वी सेड, और वो लोग गलत डाल रहे हैं, यंग जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि आपको अपनी फैमिली प्यारी है या आपको बोलना पसंद है? ये पुलिस आपको कह रही है? जी। उनके खिलाफ क्यों एक्ट नहीं किया? ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि पुलिस ने काम करना ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये यूके का पुलिस सिस्टम जरा समझाइए पुलिस मुझे। ये सिस्टम समझ में ये है कि पुलिस अगर किसी को वहाँ पे अरेस्ट करती है, एक इंसान को किसी क्राइम के जुर्म में, उसको प्रोसिक्यूट करने का खर्चा ही कम से कम 20 से 50,000 पाउंड आता है एक बंदे को, चाहे क्राइम छोटा हो चाहे क्राइम बड़ा हो। और वो अटैक हुआ है एक भारतीय पे जिसका कलर ब्राउन है। हाँ। मेरे पे क्यों खर्च करेंगे ये पैसा सेफ्टी के लिए? किसी को क्यों पकड़ेंगे वो? पर आप तो यूके सिटीजन है, तो ये ब्राउन और ये कलर वाला इशू अभी भी चल रहा है वहाँ? मैंने कभी देखा नहीं 26 साल में, लेकिन पहली बार मैंने देखा जब पिछले 9 महीनों में देख रहा हूँ। बिकॉज ऑफ आई थिंक माई कलर, आई एम नॉट बीइंग सर्व जस्टिस। पर वो भी तो जो कर रहे हैं उनको क्यों पुलिस सपोर्ट करेगी? उनको नहीं पकड़ेगी, क्योंकि अगर पकड़ेगी, एक तो वो जो लोग हम पे हमला करने आते हैं पहले बोलते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी क्योंकि हमारी पे रोल पे है। तो वो खुलेआम बोलते हैं वो खुलेआम बोलते हैं। कि वो नहीं आएगी और पुलिस आती भी नहीं है। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हर बार फ़ोन करेंगे, हाँ। पेरोल पे हमारे नहीं आएगी, करते रहो फ़ोन। और जब सेकंड अटैक हुआ था रेस्टोरेंट में, हाँ। हम 4 घंटे तक फ़ोन कर रहे थे। आई थिंक 1 घंटे में बाद पुलिस आई थी, तो हमने बोला थैंक यू फॉर कमिंग। तो कहते हम टेक अवे ऑर्डर करने आए हैं। क्या हुआ है? They were not responding the call of our attack. Police came to order food. मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि they were right. These criminals, they खालिस्तानी खुतिस्तानी criminals were right कि पुलिस नहीं आएगी, और उन्होंने आके खाने की डिमांड की मेरे से। मैंने जब मुझसे बोला कि आई पुट अ कॉल आउट फॉर दिस डिस्ट्रेस कॉल कि हम पे हमला हुआ है, बोलता है वी डोंट नो। फिर पूछा हुआ क्या, आई टुक द नेम कि किसने मेरे पे अटैक कराया है। पुलिस वाले की सिटी पिटी गुम हो गई जब मैंने नाम लिया उन लोगों का कि कौन लोगों ने मेरे हमला किया है। बोलता मैं अभी आता हूँ, और गायब। गायब हो गए।
ये ऐसे कौन लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि पुलिस भी उनके नाम से घबराती है? गैंगस्टर्स, गैंगस्टर्स हैं ये, जो खोतिस्तानियों के पेरोल पे गैंगस्टर्स हैं, जो उनके Drug कहने पे dealers. काम करते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं वो शुरू में जाते हैं उनकी आवाज़ बंद कराते हैं कि इनकी आवाज़ आगे ना जाए और हमारी राह के अंदर कोई रोड़ा ना अटकाए। मगर इस टाइम उन्होंने मैं ये नाम ऑफिशियली डाल तो नहीं सकता, मुझे पसंद बहुत आया पाजी। हाँ, मैं ये जो- बोलूँगा, ये जो मैं बोलना चाहता हूँ। खोतिस्तानी आपने बोला है, पर ये नाम आपने खोतिस्तानी क्यों चुना है? खोतिस्तानी इसलिए चुना है क्योंकि ये खालिस्तान का नाम जिसमें खालसा वर्ड डाला है, खालसा सब सिखों के लिए है। खालसा बहुत ही प्योर वर्ड है, बहुत शुद्ध वर्ड है। खालसे को पाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। मेरे गुरु ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस खालसे शब्द के लिए। मैं सिख हूँ मगर मैं अभी तक खालसा नहीं बना। और वो कल के लड़के जो गालियाँ बकते हैं, जो लोग देते हैं रेप थ्रेट, जो कहते हैं कि मैं तेरी बेटी का बलात्कार करूँगा, आई विल नॉट अलाउ देम टू यूज़ खालसा वर्ड। आई विल नॉट। ये काम जो कर रहे हैं ये काम खोतों का है, तभी बोलता हूँ ये खोतिस्तानी है। कोई सच्चा सिख, गुरु का सिख कभी किसी की बहू बेटी को नंगा नहीं करेगा, किसी के घर अटैक नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बातें। मेरे पे हमले हुए मैंने देखा, पहले भी कहता था इनको खालिस्तानी शुरू में, जब इनकी हरकतें देखी कितने नीचता तक गिर गए हैं। कोई जानवर भी ऐसा काम ना करे। जंगल भी सेफ है, जंगल में भी आप सेफ हो मगर आप इनसे सेफ नहीं हो। 9 महीने से मेरी बेटी की फोटो टांगते हैं, रोज ऑनलाइन चाटते हैं। ये क्राइम नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। इसलिए मैंने बोला खोतिस्तानी, तुम खोते हो, तुम खोतिस्तान चाहिए वो मांगो। मेरे गुरु का दिया हुआ खालसा शब्द को बदनाम मत करो। खालसा बनना आसान काम नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम सिख भी नहीं हो, तुम सिख हो, SIC के बीमार लोग हो आप। पर इनमें से सभी सिख हैं या कुछ वहाँ भी कोई गोरख धंधा है? मैडम अच्छा, आप एक बात बताओ मेरे को, अभी आप यहाँ बैठे हो, जी, आप दाढ़ी रख लो, कड़ा पहन लो, पगड़ी पहन लो, कौन क्या बता लगेगा? सकता है आप सिख हो या नहीं हो? करेक्ट। नाम भी बदल ले सकते हैं। हाँ, जी कुछ हाँ। भी नाम ले सकते हैं। जी कुछ भी नाम ले सकते हो। जी, हर कहीं हर कोई को आप ID थोड़ी दिखाओगे अपनी। करेक्ट। मेरे पे जो पहला अटैक हुआ उसके अंदर एक सरदार था, साथ में उसके 4 बंदे और थे, उनके सिर पगड़ी नहीं थी। अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो किस धर्म के थे, किस जात के थे। पर बोलते पंजाबी हैं। पंजाबी बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, हमको मालूम है क्या हो रहा है, मगर जो न्यू जनरेशन को ये भड़का रहे हैं, फुसला रहे हैं, ये कहते हैं कि मोदी साहब ने 84 के दंगे कराए, मोदी साहब ने सिखों पे जुल्म किए। गलत सिखा रहे हैं अब न्यू जनरेशन को। वो भी पढ़ाई लिखाई नहीं करती, चेक नहीं करती। जिस टाइम ये चला, आपने बोला जुल्म हुए, तो उस टाइम की चेक करो सरकार कौन थी। पंजाब में सरकार किसकी थी और हिंदुस्तान में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी उस टाइम, सीटें ही 2-4 थी उस टाइम। तो मोदी जी ने कैसे मारा? इनको इतनी अकल नहीं है, किताबें पढ़ते नहीं है, ऑनलाइन कुछ चेक करते नहीं है, और बोलते हैं कि हिंदुस्तान की मोदी जी ने हम पे अटैक कराए हैं और सिखों को मारते हैं। तो खोता क्यों ना बोलूँ उनको मैं? गलत बोलता हूँ, खोतिस्तान बोल के उनको चाहिए। खोतों को क्या चाहिए? खोतिस्तान। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिसने जुल्म किया उसका नाम लो आप, जिसने सिखों को मारा उसका नाम लो, और जिन्होंने हिंदुओं को मारा आप उसका भी नाम लो ना। फिर ताली एक से तो नहीं बजती। आपने कितने, आप जिनको आप संत बोलते हो, उनकी अगुवाई में और उनके जाने के बाद कितने हिंदुओं को पंजाब से बसों से उतार के मारा गया, चुन चुन के। वो बात की आपने, बताए बच्चों को? नहीं बताई। क्यों? क्योंकि बताएंगे तो वो बात समझेगी नहीं। उन्होंने बोला कि सिखों को मारा गया। मारा गया सिखों को, लेकिन बेगुनाह सिख भी मारे गए। मैं मानता हूं, मुझे मालूम है, हमारे सामने सब हुआ है। लेकिन जो लोगों के दिलों में गुस्सा था उस टाइम, सालों सालों से देख रहे हो, आप जा रहे हो, हिंदुओं ने पंजाब छोड़ना शुरू कर दिया। बताया आपने किसी को? आप क्यों गलत सिखा रहे हो बच्चों को कि आज की सरकार ने किया है, जबकि मोदी सरकार ने सिखों के खिलाफ आज तक मैंने देखा है 9 साल से एक भी कटु शब्द नहीं बोला। हेल्प की है। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब लेके आए हैं, वहाँ के सिखों को लेके आए हैं। क्यों सिर्फ पंजाब के सिख असलम मांगते हैं विदेशों में?
बाकी हिंदुस्तान कैसे क्यों नहीं मांगते? पर ये कौन से पंजाब से हैं ये भी तो मैं जानना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान वाले पंजाब से हैं या पाकिस्तान वाले पंजाब से हैं? ये पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है? ये आपने कभी टेस्ट करने की कोशिश की है? ये मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड है ये। मिक्स ब्रीड है। ये मिक्स ब्रीड है। मिक्स ब्रीड है और इसमें पाकिस्तानी ज़्यादा है, एजेंडा पाकिस्तानियों को ज़्यादा है कि आपको लगता है कि यहाँ से जो हिंदुस्तानी गए हैं उनकी जनरेशन्स भी ज़्यादा हैं? उनकी जनरेशन है मगर साथ मिलके बहुत लोग मिले हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों को हमने देखा है, हमने शिनाख्त की है, उनके अंदर कई फेस सामने रखा हुआ है उन्होंने। सिखों वाले जो हैं लोग, हाँ, जो सिख हैं, जो सामने बोल रहे हैं, जो छुप के बोल रहे हैं फेक आईडी के पीछे, वो किसी और धर्म के लोग हैं, वो किसी और धर्म के लोग, किसी और शहर के लोग हैं। और ये उनकी असलियत निकल जाती है सामने। हम जी, तो जी। निकालते हैं जी। जी जी, आप बस एक पिन मार दो, हाँ, एक वर्ड यूज कर दो, पिग, हाँ, सब कुछ निकल जाएगा, और सब निकल जाता सब है। सब निकल निकल जाएगा। जाता है। पर ये कौन से प्लेटफॉर्म में करते हैं ये सब? टिकटॉक, टिकटॉक। ये सब टिकटॉक पे होता है। टिकटॉक पे होता है। पर टिकटॉक पर तो यूके में भी काफ़ी टफ लॉज हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बातें हैं। सब बातें हैं, सब बातें हैं। सब बातें हैं। आप देश की बात करो तो आपका वीडियो हट जाता है क्योंकि आपको परिवार का डरा दे, ये बता दिया जाता है। और इन लोगों को फुल फ्री छूट है, कुछ भी लगा सकते हैं। जी, आपने कंप्लेन किया, आपने उनको वीडियोस दिखाई, हमने उनको proofs दिखाए? वीडियोस भेजी हैं। अगर अभी हम कंप्लेंट्स दिखाना शुरू करेंगे ना तो आप एक पूरी किताब छाप सकते हो इस चीज़ पे। हमने इतनी कंप्लेंट्स की हैं, हमने उन लोगों के एड्रेस दिए हैं, टेलीफोन नंबर्स दिए हैं, काम करने की जगह दिखाई है। सारी इन्वेस्टिगेशन तो हमने की है जो पुलिस को करनी चाहिए थी। और पुलिस बोलती है हमको कि आपने That's not इन्वेस्टिगेट enough किया है तो वी proof. कैन नॉट यूज दिस एज एविडेंस। पुलिस को हमने सबूत दिए, पुलिस बोलती है कि वी कैन नॉट यूज दिस एज एविडेंस क्योंकि ये आपने दिए हैं, हमको खुद अपनी तहकीकात करके ये एड्रेस ढूंढेंगे तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। जिसने अटैक किया उसकी फ़ोटो दे रहा हूँ, ये आदमी ने मेरे पर अटैक किया है, ये आदमी इस एड्रेस पे रहता है, इस एड्रेस पे काम करता है, फिर भी पुलिस को अरेस्ट करने से खिंचा रही है। और वो आदमी हर रोज़ पुलिस के साथ खड़ा हुआ स्पीच दे रहा होता है जिसे मेरे पे अटैक किया है। हमें एक ऑफिसर ने बोला था हम इस बंदे को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। हाँ, वही बंदा साउथ पुलिस स्टेशन के साथ बाहर खड़ा हुआ एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था। बाकी आप सब समझ आ रहे हैं। पर इतनी मिली भगत अगर इतना ओपनली और इतना ब्रेजनली, ये तो ये ग्राउंड पर जो क्लेम किया जाता है और ग्राउंड पर जो सिचुएशन है इसमें तो बहुत डिफरेंस है मैम। ये तो आई डोंट थिंक। तो आपको वहाँ कम्युनिटी से सपोर्ट मिलती है? ये लोग क्या किसी गुरुद्वारे से जुड़े हुए हैं या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या इनको वहाँ से सपोर्ट है? इनको वहाँ से सपोर्ट है, इनके कुछ गुरुद्वारे हैं और उन्होंने कुछ अपनी खुली हैं संस्थाएं खोली हैं जहाँ पे ये युवा सिखों को ट्रेनिंग देते हैं कि जुर्म कैसे करने हैं बिना पकड़े जाए, सिखाते हैं आपने कैसे किस पे अटैक करना है और कितना अटैक करना है कि आपके ऊपर केस ना बने, सिखाया जाता है इनको बाखूबी। गुरुद्वारों में से इकट्ठा होकर रैली निकलती है प्रोटेस्ट की कि हाई कमिश्नर पे अटैक करना है कि हरमन पे अटैक करना है। मेरे पास सबूत हैं कि गुरुद्वारे से रैलियाँ निकल रही हैं और लोग बोल रहे हैं गुरुद्वारा विल पे फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन, गो टू इंडियन हाई कमीशन। सब खुला है, खुलेआम अपना सिख धर्म ये बेच रहे हैं कुछ पैसों के लिए। इन्हें कौन फंड कर रहा है ये काम तो पता लगाना सरकार का है यूके की कि कौन इनके पीछे है, लेकिन ये खुलेआम गुरुद्वारों में बैठ के ये धंधा कर रहे हैं। गुरुद्वारों में उन्होंने फ़ोटो लगाई है दीप सिद्धू की, खांडा की, अमृतपाल की, भिंडरा वाले की। जिस स्थान पे हमने गुरुओं को मत्था टेकने जा रहा है हमको पहले इनका मत्था टेकना पड़ता है। 8 महीने से गुरुद्वारे नहीं गया मैं, धमकियाँ आ रही है गुरुद्वारा आएगा अपनी मर्जी से जाएगा हमारी मर्जी से। ये धमकियाँ आ रही है ऑनलाइन, प्रूफ पड़े मेरे पास, आएगा अपनी मर्जी से गुरुद्वारे जाएगा हमारी मर्जी से। ये हाल है वहाँ गुरुद्वारों का। पर लेकिन आपको वहाँ कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिला? सब डरते हैं। लोगों ने देखा है हमारे साथ, हमारे जैसे मेरी फ़ोटोज़ लगाई हैं, मेरी बेटी की फ़ोटोज़ रोज़ लगाते हैं, तो सब देखते हैं ना कौन आएगा आगे, आप बताओ। पर ये कहा जाता है कि लार्जर कम्युनिटी तो इनके सपोर्ट में नहीं है, तो अगर लार्जर कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी तो इनका तो कुछ होगा। सब पाउंड कमाने में लगे हुए हैं। किसको चाहिए ये सिरदर्दी? मैंने बोल दिया, अब मैं खड़ा हूँ, मैंने स्टैंड लिया, मैं खड़ा हूँ। इनकी गलती क्या हुई मैं हट जाता, इनकी गलती क्या की इन खुदसारियों ने? इन्होंने मेरे घर पे अटैक कर दिया,
ये गाड़ी वाला अटैक दूसरा है। हाँ। इससे पहले 23 मार्च की रात को उन्होंने मेरे घर पे अटैक किया था। आपके घर पे भी अटैक किया? तो ये दूसरी बार ये आपके घर दूसरी बार तो है। रेस्टोरेंट पे पहुंचे वो अलग वो बात। 22 मार्च को किया। हाँ। इवन पुलिस हमारे घर के आसपास घूम रही है, उसके बावजूद 23 मार्च को उन्होंने मेरे घर के बाहर अटैक किया खुलेआम। अटैक हो चुके हैं। उन्होंने गलती ये की, 5 अटैक्स हो 5 चुके हैं। अटैक। गलती इनकी ये हुई, मेरे घर पे नहीं आना था आपको। मेरे रेस्टोरेंट पे आए, हमले किए, कोई बात नहीं, मेरे घर पे नहीं आना था। और ये वाले भी इसीलिए, गाड़ी का भी इसलिए किया क्योंकि हमने बोला था कि घर नहीं आना चाहिए था, तो दोबारा घर आए हैं। और दोबारा घर पे आके ये किया और ये करके गए हैं। जी। और क्या अब आप पे प्रेशर है कि इसको पेंट वेंट करा के ठीक करा दें? नहीं करवाएंगे पुलिस बोल रही है कब ठीक करा रहे हो? मैंने बोला हाँ, मैंने कहा भैया ये तो ऐसी रहेगी अब। क्योंकि पुलिस ने चेक भी नहीं किया ना कि कौन सी बुलेट लगी है या कोई सैंपल लिया हो। फायर भी करके गए, सिर्फ पेंट ही नहीं, बुलेट। बुलेट का मार्क गाड़ी पे है, मुझे शक है बुलेट का मार्क है गाड़ी पे देखा जाए तो। पुलिस ने अभी तक किसी टीम को नहीं भेजा चेक करने के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? ये बुलेट मार्क है, रबड़ बुलेट मार्क है, मिसाइल है कि पत्थर है, पुलिस आज तक चेक करने नहीं आई है इसको। पर ये तो वैंडलिज्म है ना हरमन जी, ये तो फिजिकल इंटिमिडेशन है, ये तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। तो इस पर भी इन्होंने कुछ नहीं की पुलिस कुछ नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिस टाइम मैं पुलिस स्टेशन पे जाके रिपोर्ट लिखवा रहा था, एक ऑफिसर आई, उसने बोला कि आई नो हु डिड दिस, कि इसी लोगों ने किसी और की भी गाड़ी कुछ दिन पहले तोड़ी है ऐसे। मेरे सामने भूल गई। द पुलिस नो कौन लोग हैं, लेकिन उनको अरेस्ट करने से हिचकिचाती है, नहीं अरेस्ट करती। उनको मालूम है किसने अरेस्ट की है, किसने ये काम किया है, बट दे डोंट अरेस्ट देम। पर आपने ये भी कहा कि अगर आप हरमन की जगह कोई और होते, हरमन होते, अगर मैं हरमन स्मिथ होता, हरमन स्मिथ होते, हाँ, तो आज ये सबके सब जेल की सलाखों के पीछे होते। तो ये आप ओपनली आप कह रहे हैं कि मैं ये तो फील डिस्क्रिमिनेशन। मेरे से बीत रहा है, आप बीती है। 9 महीने से मैं जिंदगी जो जी रहा हूँ, 9 महीने से भाई रोज रोते हैं रात को। जिसकी बेटी की फोटो रोज रात को टांगोगे आप, रेप थ्रेड दोगे, ये अपने कमरे में रोती है, मैं पीछे जाके रोता हूँ रोज। बेटी अपने रूम में रोती है, मैं भुगत रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उत्पीड़ना क्या होती है एक बाप की, एक माँ की। मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ। माफ़ी मांगना 1 मिनट का काम, माफ़ी मांग खत्म हो गई। लेकिन ये जो लोग सिखों को बदनाम कर रहे हैं, मैं नहीं देख सकता। आज मेरी बेटी के साथ हुआ ये, कल किसी और बेटी के साथ ये करे और जाके किसी घर जाके किसी का रेप करे। पुलिस ने कुछ नहीं करना, लेकिन एक बाप हो, लड़ाई तो करनी पर पड़ेगी। आपको कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिला? डर है इनको। जो मेरा हाल देख रहे हो क्या हो रहा है, हाँ। धंधा चौपट हो गया है मेरा। लोग खाना खाने नहीं आते, रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा? बंद करना पड़ा आपको रेस्टोरेंट। तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल रेस्टोरेंट था। हाँ, जब से इनके साथ मेरी बातचीत शुरू हो गई, रिव्यूज डालते हैं ऑनलाइन जाके, हाउ टू पुट रिव्यूज, ट्यूटोरियल देते हैं ऑनलाइन जाके कि रिव्यूज कैसे डालने हैं हरमोन के रेस्टोरेंट के खिलाफ। खाने में चूहे निकले हैं, खाने में कीड़े निकले हैं, सब झूठ। साफ सुथरा ऑनलाइन दिखा रहे क्या डालना है। अगर खाने टोटल में क्लास चूहा चल रही है। निकले तो गवर्नमेंट आपको रेस्टोरेंट खोलने कैसे देगी? फूड हाइजीन वाले आपको रेस्टोरेंट खोलने देंगे? पर ये तो खुले आम ब्रेजन इंटिमिडेशन है, किसी की लाइफ को बर्बाद करने का। ये तो Freedom of ब्रिटिश speech लॉ। चाहिए। सर जी गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल के में रह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। इंग्लैंड में दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक फैमिली मैन को तबाह करना, उस पर हमले करना, उसकी बेटी को रेप थ्रेट देना, रात को लगाना बोली कि बेटी की शादी करोगे तो बीवी दहेज में लेके जाओ साथ में। ये लगती है बोलियां, ये खोतिस्तानी जो कहते हैं हम सिख हैं लगाते हैं बोलियां, बेटी को लेके जाएंगे शादी में दहेज में माँ को। ये रोज सहता हूं मैं। और कहते हैं कि जाओ अपने मोदी को बुलाओ कि तुम्हें बचाए। पर आप तो ब्रिटिश सिटीजन हैं, अभी तो ऋषि सुनक को चाहिए कि आपको बचाए, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को चाहिए कि आपको बचाए। वो तो अपने आप को दुनिया की सबसे टॉप पुलिस और बेस्ट पुलिस कहती क्योंकि है। हम इंडिया का फ्लैग नहीं जलाते, हम मोदी मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए कहते हैं जाओ अपने मोदी को बुलाओ तुम्हें बचाएं। और आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, अगर सुन रहे होंगे यूके वाले, वापस जाऊंगा, हर तरह से मेरे प्रेशर डालेंगे, मेरे पे 10 इन्वेस्टिगेशन डालेंगे मेरे को चुप कराने के लिए। मुझे मालूम है, अब मैं बोल रहा हूँ के खिलाफ क्योंकि मैं दुखी पीड़ित हूँ। आई एम योर सिटीजन ऋषि सोनक, इफ यू आर लिसनिंग, आई एम सिटीजन ऑफ यूके, माई किड्स आर बोर्न इन यूके। मुझे 9 महीने से न्याय नहीं मिला,
दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला यूके के अंदर रह के। इससे अच्छा किसी और मुल्क में रह लेता, मैं जंगल में जाकर रह लेता। एक बाप को, फैमिली मैन हूं, ये माँ है, आपकी बेटी नहीं ऋषि सोनक, कोई आपकी बेटी को बोले रेप यू, आके चाटे फोटो इसकी, क्या करोगे आप? कुछ नहीं। हम इमिग्रेंट है ना, कोई बात नहीं, वापस आ रहा हूं। आप इमिग्रेंट तो 25 साल से ऊपर हो गए हैं। हाँ तो जी। आपने ब्रिटेन को अपना देश बनाया। हाँ जी। मैं आपसे बस एक तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। नो मैम, फ्रैंकली मैं भी बाप हूँ और किसी पेरेंट को ये नहीं होना चाहिए। और जो आपने कहा ना कि फैमिली पर हाथ रखना और ये इंटिमिडेशन पर, अगर आप ये कह रहे हैं कि पुलिस उनके साथ है, उनको इस तरीके का प्रोटेक्शन मिल रहा है, यानी कि ये तो बहुत डीप रूटेड हो गया ना हरमन जी। आपने भी तो समझने की कोशिश की होगी कि ये कौन लोग हैं। वो खुद कह रहे हैं पुलिस हमारे साथ है, हमारे पेरोल पे है। खुद बोलती है। हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं। दो और वो बार सब हो रहा है जो दो वो कह बार रहे हैं। सिक्योरिटी हटी घर से पुलिस की, सिक्योरिटी हटने के तुरंत बाद अटैक हुए हैं। हाँ, हम अब की बार भी आपको एक पैनिक अलार्म मैंने कलाम दिया जो 10 दिन पहले हटाया, मैंने बोल दिया खुशी को खुशी अटैक होने वाला है। पैनिक अलार्म फट गया, पैनिक अलार्म फटा, धमकी आना फिर शुरू हुई और ये अटैक हो गया। उससे पहले मार्च में भी ऐसा हुआ कि पुलिस नहीं आएगी, हम आ रहे हैं, और आकर उन्होंने अटैक किया और पुलिस नहीं आई। और जब घर पे अटैक किया तो हमने पुलिस को पकड़ाए 2-3 बंदे कि ये बाहर से चिल्ला रहे थे, ये कर रहे थे, इनको अरेस्ट करो। कह रहे नो। हमने बोला कि ये पुलिस के सामने गाड़ियां रुकी उन गैंगस्टर्स की, वो पुलिस के सामने पिक्चर्स ले रहे हैं, पुलिस नॉट अरेस्टिंग देम। सामने देख के पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, कार रुकी है तो। बंदे पकड़वाए ये लोग हैं, उनका उन्होंने एड्रेस भी नहीं लिया, कहाँ रहते हो, वो छोड़ दिया। रिकॉर्ड में नहीं उनके ये लिखा हुआ कि उन्होंने कोई बंदे मैंने कहा था इनको बात करो इनसे, ये साथ मिले हुए हैं। और ये लोग सोशल मीडिया पे जो भी करते हैं, जो ये सब करते हैं, और इनके वीडियोस डाउन नहीं होते, इनको पकड़ा नहीं जाता, इनको ये नहीं किया जाता। मेरे घर के एड्रेस, मेरे काम के एड्रेस, मेरे बच्चों के स्कूल का एड्रेस, कॉलेज का एड्रेस, गाड़ियों के नंबर ऑनलाइन सब डाले हुए हैं। कहा गया जाके इनको मारो, रेप करो, वी आर विद यू। एंड वी लुक खुलेआम। आफ्टर यू। एंड ये सब एविडेंस आपने पुलिस को दिया है? हाँ जी। और फिर भी इन्होंने अभी तक फ्रीडम ऑफ कुछ- स्पीच। ये आपको कहा गया है? हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जब हमने कहा था ये लिख कर दो, हमने अपनी डिटेक्टिव को बोला था तो नहीं। फिर मैंने अपनी डिटेक्टिव को एक ईमेल की थी कि अगर हम 4 लोगों की फैमिली को कुछ भी होता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स तुमने कुछ नहीं किया। तो आफ्टर दैट आई अटेंड वन कॉल, क्योंकि हमारी डिटेक्टिव एक वुमेन है, मैं नाम नहीं लूँगी इसका। तो फिर एक मैन का मुझे फ़ोन आया कि यू ईमेल दिस, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने बोला कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सुबह से आज 12-12 घंटे मेरी डॉटर की पिक्चर लगी होती है। इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उस दिन। तो मैंने बोला अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं तो बोलूँगी, मैं तो लिखूँगी आपको, रिटर्न में मैंने आपको लिख के दिया है। और अब मैं मीडिया में भी जाऊँगी अगर आपने अरेस्ट नहीं किया किसी को। तो उसने मुझे बोला गो टू हेल। उसने आपको ये कहा? गो टू हेल। अगर ऋषि सर लोग सुन रहे हैं तो प्लीज़ उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करें अपनी पुलिस ऑफिसर के फ़ोन के साथ कि हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे पर इन्होंने कभी लिख के ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं। आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? हैं। नहीं, क्योंकि रिटर्न कर दिया तो आपने एविडेंस दे दिया ना। आपकी यहाँ पर फैमिली है, यानी अभी भी दो रिश्तेदार, सब वहीं फ्रेंड्स? पे हैं। सब वहीं। तो यहाँ पर आपके कोई दोस्त दोस्त जानने वाले होंगे? हाँ। वो क्या कहते हैं आपको? बोलते छोड़ के भारत आ जा। कभी ऐसा लगा कि यार ये नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं? लगता रोज़ है, लेकिन ख़त्म करके आऊँगा। मर के आऊँगा, मेरी अस्थि आएंगी या ख़त्म करके आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। पर जितना आपको सपोर्ट मिलता है ऑनलाइन, ग्राउंड पर कुछ लोग आके आपके साथ खड़े हुए हैं कि हरमन जी मैं आपके साथ हूँ, हम लोग आपके साथ हैं, हम मदद कर वो रहे हैं? ऑनलाइन सपोर्ट है। ऑनलाइन सपोर्ट है सिर्फ। सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट है? हाँ जी। ये सिर्फ 2 फैमिलीज है, एक हम और एक कनाडा में नैन्सी गरेवाल हाँ, गरेवाल, हाँ जी। जो लड़ रही है जो लड़ाई। लड़ रही है। उसकी भी पिक्चर्स लगाई जाती हैं, बोला जाता है कि शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, इतने पैसे लेती है, जाओ इसके घर पे।
इस तरीके की इंटिमिडेशन करते हैं वो जी लोग। जी 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 वो दिन बहुत नहीं, बहुत दूर नहीं है जब ये हिंदुस्तान की बहू बेटियों के घर जाएंगे बाहर की कंट्रियों में और उनकी रेप करेंगे, अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं तो। कि दिन दूर नहीं है, मैं आपको रिटर्न में दे सकती हूँ ये चीज़। अगर खुलेआम आप हो इसको अगर आप लोग इसको लाइटली ले रहे हो, चाहे वो यूके गवर्नमेंट है चाहे इंडियन गवर्नमेंट है, तो मैं आपको खुले में बोल रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि रोक अगर लो। परिवारों के साथ इस तरीके की हरकत वो कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं मानसिक तौर से आपको साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से कह रहे हैं कि आप हार मान लो, अब हमारी तरफ हो जाओ, और या फिर ये इंटिमिडेशन। वो पर कोशिश अब वो लेवल्स उन्होंने दायरे और ज़्यादा क्रॉस करने शुरू कर कर दिए। दिए, पर हम हार नहीं मांगेंगे, हम मर जाएंगे, गलती की है हम उन्होंने। नहीं करेंगे। घर पे नहीं आना चाहिए था, मेरे घर पे नहीं आना चाहिए था। भारत हमारा देश है, अखंड भारत है। हमारे गुरु ने शहीदियाँ दी हैं इस भारत के लिए, उन्होंने कभी नहीं मांगा खालिस्तान। कोई शब्द खालिस्तान गुरु ग्रंथ साहब में है तो दिखा दो मेरे को। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द नहीं है खालिस्तान का। कहाँ से खालिस्तान आया ये? खालसा राज का मतलब प्योर राज। प्योर राज का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी भूमि पे राज करोगे। खालसा राज का मतलब दुनिया भर में राज करो। जहाँ सिख जाएगा, जहाँ खालसा जाएगा, अपने प्यार से, बलिदान से लोगों का दिल जीत के राज करेगा, वो है खालसा राज। ना कि ये खालसा राज है कि आप बोलोगे हमको ज़मीन नहीं दी तो हम तेरी बेटी का रेप कर देंगे, हमारे खिलाफ तो बोलो तो हम तेरे को मजान से मार देंगे। ये तो खालसा राज कभी था और ही ये नहीं। खोतिस्तान अगर बन भी गया पंजाब में, तो फिर तालिबान भूल जाओगे आप लोग कि तालिबान क्या करते हैं। देखिए, इनका जो नैरेटिव है वो तो बहुत ही लॉपसाइडेड है, क्योंकि ना वो सिक्खी की बात करते हैं, और जो ज़्यादातर इस पर बात करते हैं वो भी सिक्खी को फॉलो भी नहीं करते हैं। जी। क्योंकि ननकाना साहब, पंजा साहब, सब कुछ वहाँ है। राजा रंजीत सिंह जी का कैपिटल तो लाहौर हुआ करता था, वहाँ से तो कुछ नहीं मांगा। मांग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये एजेंडा कहाँ से आ रहा है ये मैं समझ रहा हूँ। पर मैं आपसे ये जानना चाहता था कि ग्राउंड पर ये कितने विशियस हैं और कितना इनका ऑपरेशन है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है हरमन जी, कि अब आपसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? या भारत में आप आए हैं, क्या भारत में से किसी ने सरकार में से किसी ने आपसे बात की है, किसी से आप टच में हैं, या आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अभी तक तो किसी से टच भी नहीं है भारत में हम। नहीं, पर आप तो रॉ एजेंट हैं। रॉ एजेंट पहला होगा जो खुले में काम कर रहा है। तो वैसे ये भी आपको कहा गया है ना? आपको भारत में हम आए हैं तो ये रिक्वेस्ट है हमारी यहाँ की जनता से, सेलिब्रिटीज से, सरकार से, अगर हमको कुछ हो गया हमारे बच्चे संभाल लेना। और जितने भी भारतीय सुन रहे हैं, एक बार किसी ऑनलाइन पे जाके बोल दो मेरी बेटी को, परी हम तेरे साथ हैं, बस इतना कर दो, मेरे लिए बहुत है। हम तो आपके साथ हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं तो आपके साथ हूँ, आपके बच्चों के साथ हूँ, और ये पूरा देश आपके साथ है हरमन जी। देयर इज़ नो दिस अबाउट दैट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वहाँ यूके में चाहिए कि और लोग सामने निकल कर आएँ और आपकी मदद करें। जो लोग नहीं उठ रहे आज, कोई बात नहीं, मत उठो। आज जो मेरे साथ हो रहा है कल आप होगे, मर्जी आपकी है। आई थैंक यू अलॉट। आप ठीक हैं? चुप हो जाओ। बस फिनिश। चलो। सॉरी। No, it's okay, man. Thank you. I understand as a mother what you're going through, as a father what he's going through. हमने उस लड़की को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दी। हमने उसका नाम पर ही रखा है क्योंकि वो उसने अपनी ज़िंदगी ऐसी जी है। पिछले 9 महीने से इतना कुछ हो रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ होगा। Well, we need to wake up, ladies and gentlemen. We need to wake up. What's being said and what's happening on ground, you've seen. It's a father and a mother who are feeling the pinch, but these are patriots who are saying that they will not allow Sikhi to be brought a bad name, and they will stand up for the country that's their country of origin, that is Bharat. Let's think about it. Give it a serious thought.